مجھے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے محبت ہو گئی۔ روزانہ اس کے ساتھ باہر گھومنے چلی جاتی، لیکن وہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا اور نہ ہی پیسے لیتا تھا۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا، میڈم آپ کو ایسی جگہ لے کر جاؤں گا کہ آپ یاد رکھو گی۔ میں تو اس کے ساتھ جہنم جانے کے لیے بھی تیار تھی، لیکن وہ مجھے ایک ایسی جگہ لے کر گیا جہاں مرد ہی مرد تھے، اور پھر جو میرے ساتھ ہوا، میرے تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں تو میرا ہمیشہ کی طرح میں آج بھی اپنی گاڑی سے اتر کر اپنی ٹیکسی میں بیٹھ گئی تھی اور میں نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر مجھے عجیب خوشی کا احساس ہوتا تھا۔ مجھے ٹیکسی میں بیٹھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ٹیکسی ڈرائیور مجھ سے کہنے لگا، میڈم آپ کو ایسی جگہ لے کر چلتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں گی۔ ٹیکسی ڈرائیور کی آواز پر میں نے حیرت سے اسے دیکھا، کیونکہ اتنے عرصے میں اس نے مجھ سے کبھی بات نہیں کی تھی۔ میں تو اس کی محبت میں اتنی دیوانی ہو چکی تھی کہ اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنے کو بھی تیار تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، تم جہاں کہو گے میں چل پڑوں گی۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا اور پھر خاموشی سے سفر طے ہونے لگا۔ وہ مجھے سنسان علاقے میں بنے ایک چھوٹی سی عمارت پر لے آیا۔ میرے دل میں خیال آیا تھا کہ اگر وہ میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا کر دے تو، لیکن میں اس کی محبت میں اس قدر ڈوب گئی تھی کہ اگر وہ میری عزت پر ہاتھ ڈالتا تو میں خود کو اس پر وار دیتی۔ محبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ یہ بات مجھ کو بالکل سچ لگ رہی تھی۔ اس نے ٹیکسی سے اتر کر میری طرف والا دروازہ کھولا تھا اور میں اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ اس عمارت میں داخل ہوتے ہی میں حیران رہ گئی تھی۔ باہر سے کھنڈر نما نظر آنے والی یہ عمارت اندر سے شاندار تھی۔ وہ مجھے عمارت کے کمرے میں لے گیا اور وہاں جا کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں بہت بڑا کمرہ تھا جس میں بہت سارے مرد موجود تھے۔ میرے چہرے پر نقاب ڈلا ہوا تھا اور میں ان مردوں کے بیچ اکیلی کھڑی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا شوہر کاروبار کے سلسلے میں زیادہ تر باہر رہتا تھا اور کبھی کبھی 2 دن تک لوٹ کر واپس گھر نہیں آتا تھا۔ میں سارا دن گھر میں اکیلی پریشان ہو جاتی تھی۔ گھر میں کام کے لیے بھی نوکر موجود ہوتے اور کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ دنیا کی تمام عیش و آرام ہمارے پاس تھی، لیکن میں اکیلے پن سے تنگ آ چکی تھی۔ میری شادی کو سال بھر گزر چکا تھا، لیکن مجھے ابھی بھی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ جب بھی میں اپنے شوہر سے تنہائی کا بیان کرتی تو مجھ سے کہتا، میں کیا کروں، میں بھی تو اپنے کام کے سلسلے میں مجبور ہوں، ورنہ تمہارے بنا ایک پل بھی گزارنا میرے لیے بہت دشوار ہے۔ وہ مجھے اپنی باہوں میں بھر کر بے پناہ محبت کا اظہار کرنے لگتا اور میں سارے شکوے شکایت بھول جاتی، لیکن جیسے ہی دوبارہ وہ کام پر جاتا مجھے تنہائی کا احساس ہونے لگتا۔ رضا مجھ سے کہتا کہ تم اپنی کوئی مصروفیت ڈھونڈ لو تاکہ تمہیں اکیلے پن سے چھٹکارا مل جائے۔ جیسا کہ بات کو مانتے ہوئے میں روز ہی ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکل جاتی اور کئی گھنٹے بے وجہ شاپنگ مال میں گزار دیتی۔ شادی سے پہلے میں بہت غریب تھی اور میں نے کبھی شاپنگ مال میں قدم بھی نہیں رکھا تھا، اور میں جب گھنٹوں شاپنگ مال میں گھومتی تب بھی مجھے خوشی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ جو چیز انسان کے پاس آ جائے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اور اب میرے نزدیک تمام شوق اور پیسوں کی اہمیت ختم ہو چکی تھی۔ ایسے ہی ایک دوپہر میں شاپنگ کر کے شاپنگ سینٹر سے باہر نکلی تو ڈرائیور نے بتایا کہ گاڑی میں کچھ خراب ہو گیا ہے، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، ٹھیک ہے تم گاڑی بنوا لو، اور میں ٹیکسی سے گھر چلی جاتی ہوں۔ میں نے وہیں سے ٹیکسی ہائر کی اور ٹیکسی میں بیٹھ گئی، اور جب میں شیشے میں دیکھا تو ڈرائیور کی شکل مجھے نظر آ رہی تھی اور میں اس کی شکل کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا جو دیکھنے میں پڑھا لکھا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے میں کیسی کشش تھی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھتی چلی گئی۔ میں نے جان بوجھ کر اس سے بات شروع کی تو مجھے پتا چلا وہ روز ہی شاپنگ مال کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور یہیں سے سواریاں اٹھاتا ہے۔ وہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا، میں جتنے سوال پوچھتی وہ اتنے ہی جواب دے دیتا۔ اسے دیکھنا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، اس لیے میں گھر آنے کی بجائے شام تک اسی کی ٹیکسی میں گھومتی رہی، کیونکہ گھر جا کر بھی مجھے کوئی کام نہیں تھا اور نہ ہی گھر میں مجھ سے کوئی بات کرنے والا تھا۔
जब मैं घर पहुंचकर किराया देने लगी तो टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे किराया ना लिया और मेरे लाख कहने पर वो सर झुकाए बैठे रहा और बगैर पैसे लिए ही वहाँ से चला गया। घर आने के बाद भी मैं सारा वक्त उसके बारे में ही सोचती रही। वो मेरी उम्र का ही था और वो वैसा था जैसा मैं जीवन साथी चाहती थी। मेरा शौहर रज़ा बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन वह उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था और इसी वजह से मैं अपने शौहर के साथ एक बेहतरीन ताल्लुक़ नहीं बना सकी। जब भी मैं रज़ा के करीब होती तो उसके सफ़ेद बाल मुझे सोच में डाल देते और मैं सोचती 16 साल की उम्र में मैं क्यों इतने बड़े मर्द के साथ रिश्ता निभा रही हूँ। मेरी शादी मेरी माँ ने रज़ा की शोहरत और दौलत देखकर मेरी शादी रज़ा से कर दी थी। हम बहुत गरीब थे और मैं अपनी माँ की इकलौती औलाद थी। अम्मा को मेरी बहुत फिक्र थी और वो जल्द से जल्द मेरी शादी करना चाहती थीं। ऐसे में जब रज़ा का रिश्ता आया तो उनको ऐसा लगा जैसे मेरे नसीब जाग गए हों। अम्मा ने चट मंगनी पट ब्याह वाली कहावत पूरी करते हुए फौरन ही मेरी शादी रज़ा से कर दी। अम्मा के चले जाने के बाद पूरी तरह से मैं टूट गई थी, लेकिन रज़ा ने बहुत ही मोहब्बत से अपनी पलकों पर बैठा कर रखा। मैं बहुत ही खूबसूरत थी और रज़ा मेरी खूबसूरती का दीवाना था। उसने मुझसे पसंद की शादी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये बात ज़रूर चुभती थी कि रज़ा मेरे काबिल नहीं है। मुझे रज़ा से बेहतर जीवन साथी मिल सकता था। हम दोनों के दरमियान इस रिश्ते ने मुझे पूरी तरह खुशी नहीं दी थी। ऐसे में टैक्सी ड्राइवर मेरी ज़िंदगी में चला आया और सब कुछ बदल गया। शॉपिंग मॉल से घर आने के बाद मैं सारा दिन घर में चकराती फिरती रही। रात भर रज़ा काम से वापस ना लौटा और मुझे कॉल करके बता दिया वो 2 दिन बाद घर वापस आएगा। रज़ा का कारोबार कई शहरों में फैल चुका था और इसी वजह से रज़ा अक्सर दूसरे शहर चला जाया करता था। मैं थकी हारी बिस्तर पर लेटी तो उसी टैक्सी ड्राइवर का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। उसकी नीली आंखें मेरे दिल में बस गई थीं। उसके बारे में सोचते सोचते मैं न जाने कब नींद में चली गई और जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा दिल उस ड्राइवर को देखने के लिए मचलने लगा। मैं नाश्ता करके तैयार हुई और ड्राइवर के साथ उसी शॉपिंग मॉल के लिए निकल पड़ी और मॉल के अंदर जाने की बजाय मैंने उस टैक्सी स्टैंड पर नज़र डाली तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि मुझे वहाँ वो टैक्सी ड्राइवर नज़र आया। मेरा ड्राइवर गाड़ी पार्किंग के लिए लेकर चला गया और मैं चुपके से उस टैक्सी ड्राइवर की गाड़ी में बैठ गई और उस टैक्सी ड्राइवर को शायद यकीन था कि मैं ज़रूर आऊँगी। मैं एक दफ़ा फिर उसे लेकर शहर की सड़कों में घूमने लगी। वो सारा रास्ता बिल्कुल खामोश रहता और मैं उससे जहाँ चलने को कहती वो चल देता। मैं पिछली सीट पर बैठी सामने लगे शीशे में उसका चेहरा देखती रहती। मुझे ऐसा लगता था यह टैक्सी ड्राइवर मेरे लिए ही बना है और मैंने रज़ा से शादी करके कोई गलती कर दी है। मुझे खुद ब खुद उससे मोहब्बत हो गई थी। वापस से वो टैक्सी ड्राइवर मुझे शॉपिंग मॉल में छोड़ गया और मुझसे 1 रुपया भी ना लिया। मैं हैरान थी कि 2 दिन मुझे घुमाने के बावजूद भी मुझसे पैसे क्यों नहीं ले रहा। आज मैंने उसे पैसे देने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सर झुकाए नीचे बैठा रहा और मुझे मजबूरन अपने ड्राइवर के पास आना पड़ा और फिर यह सिलसिला चल निकला। मैं रोज़ उसी टैक्सी ड्राइवर के साथ सारा दिन शहर की सड़कों में घूमती रहती और सिर्फ उसके चेहरे को देखती रहती। मैंने अपने चेहरे को नकाब से छुपाना शुरू कर दिया था ताकि मेरे चेहरे को कोई देख ना सके। कभी कभी मुझे ख्याल आता कि रज़ा को अगर इस बारे में पता चलेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी, लेकिन मैं खुद को ही समझा लेती। अब तो मैंने अपने शौहर रज़ा से तन्हाई की शिकायत शुरू कर दी थी। रज़ा भी समझ गए थे और वो मेरे लिए उदास रवैये से बहुत परेशान थे और उन्हें अब इस बात की तसल्ली हो गई थी कि वो मुझे उनके बगैर रहने की आदत हो गई है। रज़ा ने मुझे यूं ही कहीं रास्ते में देखा था और फिर मेरा घर ढूंढकर खुद ही मेरा रिश्ता लेकर चले आए थे। रज़ा ने बताया कि उनके माँ बाप साल भर पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और अब वो अकेले हैं। रज़ा कपड़े का कारोबार करते थे और उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। रज़ा ने शादी पर मुझे सोने में तौल दिया था और मैं शादी के शुरू के दिनों में बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे हर वो चीज़ जिसके लिए मैं तरसती थी मुझे हासिल हो गई थी। लेकिन वक्त के साथ साथ हर चीज़ की अपनी अहमियत होती है।
ऐसे में टैक्सी ड्राइवर का मेरी ज़िंदगी में आना किसी खुशगवार हवा के झोंके की तरह साबित हुआ। उसे देखते ही मुझे एहसास होता कि मुझे ऐसे ही किसी जवान मर्द के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। रज़ा के बालों की उतरती चांदी ने मेरे दिल को उदास कर रखा था, जबकि मैं जवानी के जोबन पर थी। इसीलिए मैं ड्राइवर से कहीं भी चलने को कहती तो वो बिना सोचे समझे चल पड़ता, और मैं भी बिना सोचे समझे ही उसके साथ चल पड़ती। मैं तो उसके साथ जहन्नुम में भी जाने को तैयार थी, लेकिन वो मुझे ऐसी जगह पर ले गया जहाँ पर बहुत सारे मर्द थे, और वो सारे ही मुझे ऐसी नज़रों से देख रहे थे कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब मैंने वहाँ ऐसे शख्स को देखा जिसे मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मेरे चेहरे पर नकाब होने की वजह से वो शख्स मुझे पहचान नहीं पाया था, और शायद उसे वहाँ पर मेरी मौजूदगी की कोई परवाह नहीं थी। वो सब मुझे अपनी हवस भरी निगाहों से देख रहे थे, और टैक्सी ड्राइवर ने मेरा हाथ पकड़कर उनके बीच ले आया और उसने मेरा नकाब बुरी तरह खींचकर उतार दिया। मैं बुरी तरह घबरा गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ मौजूद मर्दों ने मेरी बोली लगानी शुरू कर दी। सब बारी बारी से मेरी कीमत लगा रहे थे, और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं कहाँ चली आई हूँ। लेकिन मैं अब तक ये नहीं समझ पा रही थी कि इस जगह मेरे शौहर रज़ा का क्या काम है। वहाँ इतना शोर था, अगर मैं चीखती भी तो मेरी आवाज़ रज़ा तक न पहुँच पाती। उस टैक्सी ड्राइवर ने मेरे दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ा हुआ था, और मैं अपने हाथों को छुड़वा भी नहीं पा रही थी। बारी बारी सब लोगों ने मेरी बोली लगाई, और जिसने सबसे ज़्यादा मेरी कीमत लगाई मुझे उसके नाम कर दिया गया। उस शख्स ने पैसों से भरा सूटकेस उठाया तो मेरा शौहर वह सूटकेस लेने के लिए आया, और जैसे ही उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो उसका चेहरा शर्द पड़ गया। वो पैसे वाला सूटकेस लेने की बजाय हैरान निगाहों से मुझे देख रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, और मैं अभी तक टैक्सी ड्राइवर के चंगुल में फंसी हुई थी। रज़ा किसी तीर की तरह वहाँ पर आया, और उसने टैक्सी ड्राइवर के चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद किया। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया था। हर कोई रज़ा और टैक्सी ड्राइवर की शक्ल को देख रहा था। रज़ा ने मेरा हाथ पकड़कर तुरंत उस भीड़ से मुझे बाहर ले आया। उसने सीधे ही मुझे गाड़ी में धक्का दिया और गाड़ी में बैठाकर वहाँ से निकल आया। मैं ज़ारो कतार रो रही थी। गाड़ी से उतरकर रज़ा मुझे हमारे कमरे में ले आया था और मेरे पास बैठ गया था, और मैं अभी भी सिसक रही थी। रज़ा जैसे ही मुझे अपने करीब करने की कोशिश की तो मैंने उसे जोरदार धक्का दिया। मैंने रज़ा से कहा, ये सब क्या था? आप ऐसी जगह पर क्या कर रहे थे जहाँ पर औरतों की बोली लगाकर ख़रीदा जाता है? वो मुझसे कहने लगा, पहले तुम बताओ कि तुम वहाँ कैसे पहुँची, फिर मैं भी तुम्हें बताऊँगा कि मैं वहाँ क्या कर रहा था। मैंने रज़ा को बताया कि मैं टैक्सी ड्राइवर के साथ वहाँ से निकली थी, और टैक्सी ड्राइवर ने धोखे से मुझे वहाँ ले गया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं रज़ा को अपना पूरा सच बता सकती, इसलिए मैंने अपनी आधी अधूरी बात बताई कि मैं गैर मर्द की मोहब्बत का शिकार हो गई थी। रज़ा मुझसे कह रहा था कि वो टैक्सी ड्राइवर जो मुझे वहाँ तक लाया था, वो वैसे गैंग का आदमी था जो औरतों को अपने जाल में फंसाकर इस तरह गायब करता है कि कोई उन्हें ढूंढ ना पाए, और वो आगे ले जाकर उन्हें बेच देते हैं। कुछ औरतें जो कम उम्र हसीन होती हैं उन्हें बोली लगाकर ख़रीदा जाता है ताकि अच्छी कीमत वसूल हो, और कुछ औरतों को अच्छी तरह तैयार करते हैं, उन्हें दूसरे मुल्क में भेज दिया जाता है, और वहाँ बड़े पैमाने पर उन्हें जिस्म फरोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और नशा देकर उनका काम करवाया जाता है। रज़ा हैरान था कि मैं किस तरह उस टैक्सी ड्राइवर के हाथ लग गई और वह मुझे वहाँ तक ले आया। मैंने कहा, आप ये बताएं कि आपका वहाँ क्या काम था? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस तरह के घटिया इंसान निकलेंगे और आप इस तरह का घटिया काम करेंगे। आपने इसीलिए गरीब लड़की से शादी की है ताकि आपका सच खुलने पर मैं आपसे शिकायत भी न कर सकूं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरी बात सुनकर रज़ा मुस्कुरा उठे और कहने लगे, वह मेरी बेगम साहिबा, आपने पूरी बात सुने बगैर ही मुझे घटिया इंसान करार दे दिया। उसके बाद जो रज़ा ने मुझे बताया, मैं सुनकर हैरान रह गई। रज़ा ने बताया कि वह खुफिया एजेंसी के लिए काम करते हैं और उन्हें ये काम सौंपा गया था कि वह पूरे ग्रुप को बेनकाब करके उन्हें गिरफ्तार करवाएं। छोटे शहरों से बड़ी तादाद में लड़कियों को अगवा किया जा रहा है
और ये लोग लड़कियों को इतनी सफाई से अगवा करते हैं कि पुलिस वाले इन्हें ढूंढने में पूरी तरह से नाकाम हैं। इसलिए सरकार खुफिया एजेंसियों के जरिए इन्हें पकड़ने का काम कर रही है और इसीलिए मैं उन्हीं के ग्रुप में रहकर उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ, ताकि मुझे उनकी तमाम सीक्रेट बातों का पता चल सके। मैंने तुम्हें ये बात पहले इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मुझे डर था मेरी वजह से तुम्हें नुकसान न पहुंच जाए। मैं तुम्हें अपने काम और अपने मिशन से दूर रखना चाहता था। वो टैक्सी ड्राइवर ऐसी लड़कियों को ढूंढ ढूंढ कर उसी इमारत तक पहुंचाता है जिनके पीछे आने वाला कोई न हो। यकीनन उस टैक्सी ड्राइवर को पूरी तरह से अंदाज़ा हो गया था कि तुम्हारे पीछे आने वाला कोई नहीं है और इसीलिए वो तुम्हें वहाँ तक ले आया था और मैं तुम्हें निकालने के लिए सब कुछ छोड़कर वहाँ से चला आया हूँ। अब मुझे वहाँ जाकर दूसरी जगह बनानी होगी ताकि मैं दूसरी औरतों को बचा सकूँ। रज़ा मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे कि मैं उस टैक्सी ड्राइवर के साथ उसकी मदद तक कैसे आ गई, क्योंकि वह टैक्सी ड्राइवर किसी को ज़बरदस्ती उस इमारत तक नहीं लाता, बल्कि वह उन्हें रज़ामंद करके ही लाता है ताकि रास्ते में उसे किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैंने तमाम हिम्मत जमा करके सच बताने का फ़ैसला किया कि वह टैक्सी ड्राइवर मुझे शॉपिंग मॉल के बाहर मिला था, लेकिन फिर वह मुझे अच्छा लगने लगा और मैं जानबूझकर उसकी टैक्सी में सफ़र करने लगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने इस बात को मान लिया था कि मैं तन्हाई से तंग आकर दूसरा सहारा ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो टैक्सी ड्राइवर मेरी ही उम्र का था और मैं इसीलिए उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी क्योंकि रज़ा की उम्र से मुझे मसला था। रज़ा की गैर मौजूदगी और तन्हाई ने मुझे गलत रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया था और मुझे अपने किए की सज़ा मिल गई थी। मेरी आंखों में शर्मिंदगी साफ नज़र आ रही थी और रज़ा मुझे देखे जा रहे थे। वो कहने लगे कि उन्हें एहसास है कि उन्हें काम की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अकेला रहना पड़ता है क्योंकि उनका काम ही ऐसा है कि उन्हें घर से दूर रहना पड़ता है। वो कहने लगे कि जहाँ तक की रही उम्र की बात, तो वो मेरी ही उम्र के हैं, लेकिन उनको अपना हुलिया किसी बड़े उम्र के आदमी की तरह बनाना पड़ा है क्योंकि ये उनकी मिशन की ज़रूरत है। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई जब उन्होंने बताया कि उनके बालों की सफ़ेदी उनकी उम्र की वजह से नहीं बल्कि डाई कलर की वजह से है। तो एक शर्मिंदगी के एहसास ने मुझे घेर लिया और मैंने रज़ा से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। रज़ा ने मुझे पूरे दिल से माफ़ कर दिया और मुझसे इस बात का वादा किया कि मैं कभी गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगी। रज़ा ने मुझे अपने गले से लगा लिया और अपने मोहब्बत की मोहर मेरे माथे पर देते हुए कहा कि मुझे अभी जाना होगा और जो तुमने गलती की है उन्हें तुम्हें सुधारना होगा। मेरी इस गलती की वजह से उनकी कितनी महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया था। रज़ा मुझे छोड़कर वापस अपने मिशन पर चले गए और मैंने उनके लिए दुआ की थी कि वह जल्दी से पूरे ग्रुप को बेनकाब करके दूसरी औरतों की इज्जत बचा सकें। मैं अपनी ही गलती से सब कुछ तबाह करने जा रही थी, लेकिन मेरे साथ अभी भी मेरी माँ की दुआएं थीं और मेरे साथ रज़ा जैसे ईमानदार नेक पति का साथ था जिसने मुझे न सिर्फ बचा लिया था बल्कि मेरी गलतियों को भी माफ़ कर दिया था। 2 महीने बाद हर न्यूज़ चैनल पर यही खबर चल रही थी कि औरतों को अगवा करके बेचने वाला एक बड़ा गैंग बेनकाब हो गया है। साथ ही उस टैक्सी ड्राइवर की तस्वीर भी स्क्रीन पर नज़र आ रही थी। मुझे खुशी थी कि मेरा शौहर अपने मिशन में कामयाब हो गया था। रात को रज़ा जब घर लौटकर वापस आए तो मेरे पास भी उन्हें देने के लिए खुशखबरी थी। मैं माँ बनने वाली थी और खुशियों ने पूरी तरह मेरी ज़िंदगी को रंगों से भर दिया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कैसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ वापस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।